Hello dear aspirants. So I hope you all are enjoying the concept talk, right? So game of greens के बाद में game of stocks. I hope the persons who have just attended that game of greens, the appreciations or the conceptual clarity they have now about that, right? So they are more curious about the second game now. And believe me, this is as important as the most important topic for the UPSC exam for mathematics optional, right? So here we are not doing something like research or kind of, here we are always directed towards our exam point of view, the mathematics optional for CSE and forest services. So without wasting a single minute, let's start. So when I say game is just for like keeping you engaged, है ना? Nothing more than that. But I am always focused for the audience, the student for whom I am here, right? So as we have a topic, vector calculus in the paper 1, right? For both the exams like CSE and forest services, it is very important. So here we have Stokes theorem, right? So in today's game we will try to touch the nerve, we will try to touch those gray areas. क्या करेंगे? Gray areas where aspirant struggle, where aspirants commit mistakes. ठीक है? So that is the first part. Second part, how to address the CSE and forest services demands for this mathematics optional, right? इन दोनों पॉइंट के अलावा मैं आपको कहीं लेके जाने वाला नहीं हूं, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं लेक्चर के स्टार्टिंग में, मास्टर थोड़ा स्लो है क्योंकि एक बड़ा अनुभव जो साथ में समेटे हुए हैं वो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए कंपेल करता है, बी वेरी सिस्टमेटिक, be calm and composed, never run behind completion, just focus on the quality and make it more effective. ठीक है? So those are the keywords which I follow while my teaching. So if you feel the teaching is slow or the video is slow, you can increase the speed of the video by 1.5x or 2x. It is up to your choice, your device. But don't skip a single word of this concept talk. Believe me dear fellows, I'm not saying this just like that because I want you to be. No, I'm just saying because over the years when students ask kind of different kind of problems and weaknesses here in the stocks, I have like compiled those in my memory and I try to evolve myself over that. Fair? So here I'm like you, not as a teacher. चले, स्टोक्स थ्योरम. सो हमेशा बोलता हूँ मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड रहिए, रैंडमली कोई चीज़ बात नहीं की जाती है. जब मेरे पास थ्योरम है तो उसका स्टेटमेंट होगा और उसका प्रूफ होगा. प्रूफ यूपीएससी पूछता है या नहीं, हम करेंगे या नहीं, दैट इज़ नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट हियर. मैटर इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट while addressing the demand of our exam. That is the concern. चलिए, so देखिएगा, basically suppose that we have, let's consider a function obviously vector valued f vector. Okay, so अगर आपसे पूछे एक्चुअली ये स्टोक्स है क्या, ठीक है? देखिएगा ध्यान से,
I'll be writing here 2 keywords and that will create the more curiosity in you. The tangential, the line integral of the tangential component of f vector. इस वर्ड को ध्यान रखना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ f वेक्टर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी होंगी जो वर्ड्स कई बार एग्जाम में यूज़ कर देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। कई बार ऐसा लगता है हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, तो आई एम एड्रेसिंग दोज प्रॉब्लम्स एज वेल हियर. So the line integral of the tangential component of f vector. Other I am saying the surface integral of the normal component of f vector. क्या बोला? द सरफेस इंटेग्रल. सो ये जो स्टोक्स है ना भाई, इन दोनों को रिलेशन लिख देते हैं. मेरी बात समझे? तो ये है स्टोक्स साहब. क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लाइन इंटेग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज सरफेस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ curl f vector. I'm sorry for that. Of curl of f vector, है ना? So this is curl of f vector n cap ds. ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं है. आपको ये दोनों चीज़ें पढ़नी नहीं आती थी, ये क्लियर बात है. कुछ लोग होंगे जिन्होंने उसको एक्सप्लोर किया होगा, आई एम नॉट सेइंग, बट इन जनरल मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही है. ठीक है? तो पहला पॉइंट जहां आपको उपेन सर ने बोला कि भाई इसका मीनिंग क्या है, स्टोक्स कर क्या रहा है बेसिकली. अब देखिए दूसरा कंपोनेंट, क्या यहां C और S का कोई सेंस होता है? या कोई भी कर्व उठाएंगे हम C, कोई भी सरफेस S उठाएंगे और स्टोक्स लगा देंगे और इन दोनों के बीच में संबंध बता देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं. देखिए ध्यान से. तो अगला जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है स्टोक्स में, प्लीज़ बेटा लोग, ये आपको पता है, मैं उस पर फोकस भी नहीं कर रहा हूँ. आपको जो नहीं पता है, जहाँ गलती होने के चांस होते हैं, मैं वहाँ कोशिश कर रहा हूँ आने की. चलिए देखिए ध्यान से. हियर S is the surface whose boundary is the closed curve C. अंडरलाइन कीजिए. अगर मेरा C क्लोज्ड नहीं है, ठीक है, S की वो बाउंड्री नहीं है, तो मेरे भाई स्टोक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. एम आई क्लियर टू ऑल? एकदम आराम से, बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं है यहां. मैं फिर कहूंगा, ये चीज आपने नहीं पढ़ी थी, ये मैं गारंटी कर सकता. पढ़ी मतलब थी वहां पर, लेकिन आपने उतना गौर नहीं किया. अब मैं चाहूंगा कि इसका मतलब क्या होता है. बी ऑन द बोर्ड प्लीज. मैं रेड पेन यूज करूंगा सो दैट आपको चमके वो चीज. सपोज दैट मेरे पास जो सरफेस है, मान लो वो स्फेरिकल सरफेस है ये, ठीक है, ये S है, ठीक है, स्फेरिकल क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस. इस सरफेस के ऊपर स्टोक्स नहीं लगेगा, नहीं लग सकता. स्टोक्स जो लगेगा वो लगेगा जब आपका सिस्टम
इस टाइप से डिजाइंड होगा। सो दिस इज द सरफेस, ध्यान से देखना, आप चाहें तो हेमीस्फेरिकल बाउल को स्टोक्स का रिमेंबरिंग पॉइंट बना सकते हैं कि स्टोक्स विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस विच आर लाइक हेमीस्फेरिकल बाउल। सो यहां पर भी ये सरफेस था, ये सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है ना, लेकिन क्लोज्ड है, एस खुद में क्लोज्ड है, जबकि हमें सरफेस चाहिए विच इज बाउंडेड बाय द क्लोज्ड कर्व सी। सो हियर इट इज सी, ये मान लो सर्किल, ये जो ऊपर है ना सर्किल ही होगा ऑब्वियसली, और ये है हमारी सरफेस एस। तो यहां पर स्टोक्स एप्लीकेबल होगा, यहां पर स्टोक्स एप्लीकेबल नहीं होगी। तनाव है क्या? और आगे बढ़े क्या? रुकिए ना, अभी तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम से जब गेम ही खेल रहे हैं तो गेम ही उसका खेलना है, आराम से। और आगे क्यों बढ़ रहा हूं? क्योंकि ये क्लासेस का एक्सपीरियंस है जो कहता है कि नहीं नहीं बच्चा यहाँ पे भी फंसेगा, बच्चे को क्लोज्ड का मतलब नहीं समझ आया, अभी समझाओ, नहीं तो अपने आप से पूछो जरा, यही सोच रहे हैं ना आप? बोलो बोलो, ठीक है। चलिए देखेंगे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सरफेस दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बी ऑन द बोर्ड प्लीज। इस तरीके से हम सिलिंड्रिकल सरफेस का डिकोड भी कर लेंगे। मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, लेट्स से ठीक है, आराम से, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के लिए आप कॉन्सेप्ट टॉक अटेंड ही करते हैं। न्यूमेरिकल्स तो भरे पड़े हैं, और न्यूमेरिकल्स को भी जब ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट टॉक होता ही है। ठीक है, चलिए ये सिलेंडर है, आप एक मार्कर या कुछ भी इसको मान लीजिए, एक सिलेंडर है, ये ढक्कन ऊपर लगा हुआ है, ये नीचे ढक्कन लगा हुआ है, इसकी सरफेस है। तो सिलेंडर के पास अगर मैं आपसे कहूँ, लेट्स से दिस इज द S1 सरफेस, दिस इज S2 सरफेस, और ये मेरी जो है सरफेस वो है S3। ठीक है, अब मैं एक और सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखते रहिए। वन मोर सिलेंडर आई एम इमेजिनिंग हियर, दैट इज, जिसमें कि मैंने ये वाला सरफेस लिया, ध्यान से देखते रहना, S2 लिया, S3 लिया, और इसको ओपन रखा, मतलब S1 इज नॉट इंक्लूडेड, नीचे से सिलेंडर खुला हुआ है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक वापस से सिलेंडर कंसीडर किया जिसमें मैंने केवल सरफेसेस लिए हैं, ये वाले सरफेस, ठीक है, उसको भी छोड़ दिया। अब आप प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे कि इनमें से फिगर 1 में जो कॉन्फ़िगरेशन है, फिगर 2 में जो कॉन्फ़िगरेशन है, फिगर 3 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, किस पर स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा, किस पर स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी? बोलिए बोलिए, पूरा एकदम विश्वास के साथ बोलिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में तो प्लीज़ कोऑपरेट, पहले ही बोला मैंने। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या सिखाया था, दिस इज द क्लोज्ड, होल क्लोज्ड, सो यहां पर तो स्टोक्स नहीं लगेगा। और मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि हेमीस्फेरिकल बाउल कंसीडर करने को बोला, तो आप केवल स्फेरिकल को ही ना समझ जाए, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था यहां पर। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, इसको भी तो एक बॉल की तरह कंसीडर कर सकते हैं जिसका कि सी ये है,
तो यहां पर स्टोक्स एप्लीकेबल, राइट और नॉट? बट इफ यू ऑब्जर्व हियर देयर इज नो बाउंड्री फॉर एस, दैट इज सी, कोई बाउंड्री नहीं है यहां पर। तो जब सी मिसिंग है तो स्टोक्स नॉट एप्लीकेबल। आई गेस अब आपको क्रिस्टल क्लियर चमक गया होगा कि स्टोक्स थ्योरम कब लगा सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि मेनी ऑफ द आंसर्स और बुक्स आई हैव लाइक सम यूनिवर्सिटी लेवल बुक्स ऑल्सो, वहाँ पर देखा है कि जहाँ स्टोक्स एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर भी स्टोक्स लगा के आंसर निकाल दिया है। तो आंसर मैचिंग में मत जाइए प्यारे बच्चों, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया था गेम ऑफ स्टोक्स। डिड यू गेट माई पॉइंट? बात समझ रहे हैं? तो स्टोक्स थ्योरम कहाँ एप्लीकेबल होगी? पहला पॉइंट जिस पर कि आपने कभी गौर नहीं किया, ठीक है? अभी क्लोज्ड एंड बाउंड्री सी का मतलब समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है तो वापस से जाइए, वापस से वर्ड्स को सुनिए। आई होप इट विल बी द क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। क्लोज्ड विद द बाउंड्री सी, अगर इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होगा वहीं पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप स्टोक्स पढ़ते थे तो आपके लिए स्टोक्स का मतलब क्या होता था प्यारे बच्चों? केवल ये स्टेटमेंट, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, मेरा अपना तो एज ए स्टूडेंट यही एक्सपीरियंस था ही, लेकिन जब कई सारे बच्चों ने भी यही चीज़ कही कि सर हम तो स्टोक्स का मतलब यही समझते थे, उस विश्वास पर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको स्टोक्स का मतलब ये भी समझना चाहिए। आपको स्टोक्स का मतलब एप्लीकेबल है या नहीं ये भी समझना चाहिए, राइट और नॉट? तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम में कैसे काम करना है हमें तो उस पर बात करनी होती है। इज दैट राइट और नॉट? तो स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस पर क्या क्या काम करना होगा अपने को, उस पर बात करें अभी। गेटिंग माई पॉइंट? मान लो वेरीफाई कराने को बोल दिया, कोई सरफेस दे दिया जिस पर स्टोक्स वेरीफाई करा रहा है, सिलेंड्रिकल सरफेस पे कैसे वेरीफाई करेंगे? लाइक दैट यू कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अप विथ दोज ब्यूटिफुल कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल इन द कॉन्सेप्ट टॉक, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक यू फील कि इस सेगमेंट में अगर ये आप 10 to 12 कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम, मतलब 10 से 12 ये फिक्स्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन सरफेसेस इन स्पेसेस पर अगर काम कर लें आप, तो सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे। नॉट ओनली पीवाईक्यूज, आई एम सेइंग द होल सिनेरियो अबाउट, ठीक है? बट बिफोर दैट हम ये समझ लें कि स्टोक्स में करते क्या है। तो पहला पॉइंट, स्टोक्स कहता क्या है, स्टोक्स का फॉर्मूला क्या है, स्टोक्स एप्लीकेबल किस कॉन्फ़िगरेशन पर होगा। चलो अब मान लो मेरे को पता चल गया कि हाँ ठीक है, स्टोक्स एप्लीकेबल है, सारी चीज़ें सेटिस्फाई हैं, अब अप्लाई करने की ओर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द स्टेप 2, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है? चलिए, तो किसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें? हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने की, ठीक है? हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने की। सो लाइन इवैल्यूएटिंग आई एम सॉरी इवैल्यूएटिंग द लाइन इंटीग्रल। So for that obviously we had different concept talk, how to work with the line integrals. So obviously we cannot like do that again and again here. The other point is we have to evaluate surface integral curl of f and ds, right? We have to evaluate curl f vector n cap ds. So here basically evaluating the surface integral, right?
So when we talk about surface integral itself, what I am saying, when we talk about surface integral itself, then it needs to be discussed separately, because बहुत सारे लोगों को मैं गारंटी कर सकता हूँ, they even don't have the exact phenomena और exact things in their minds कि इसको कैसे इसके साथ में खेला जाएगा. ठीक है. So we will have altogether a different concept talk for that. I am not gonna include that here, believe me. ठीक है. चलिए, हम छोटी छोटी चीज़ों पर बात करने वाले हैं यहाँ पर, जहाँ की आपको मेरी ज़रूरत. अब जैसे कर्ल एफ वेक्टर निकालना हो, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नॉट एट ऑल. अब एन कैप की बात आती है. जब भी एन कैप की बात आती है तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि दोस्त, अब ज़रूरत आन पड़ी है वेक्टर डिफरेंशिएशन की. हालांकि एक बार जब आपको आदत पड़ जाती है, उसके बाद यहाँ कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम महसूस नहीं होती, लेकिन वो आदत तो डालनी होगी ना, वो चीज़ें तो करनी होंगी ना एक बार. चलिए, सो अगर हम रिकॉल, अगेन आई एम सेइंग, अगर मुझे इसके आंसर को करना हो 2 मिनट में कर देता हूँ, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट टॉक इज नॉट ऑल अबाउट दैट. चलिए, हम स्टार्ट करते हैं रिकॉलिंग. किसको रिकॉल करते हैं? वेक्टर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को. वेक्टर डिफरेंशिएशन में वी हैड अ टॉपिक ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट किसका होता है? ऑफ अ. आराम से देखते रहना इस चीज़ को. अगेन आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी अलग से डील किया है तो उसको वापस से क्या इतना काम करने की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल. ज़रूरत है, इसलिए टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मेरा है. नहीं, आपका भी है, आई एम सॉरी, बराबर है हम दोनों का, बराबर. चलिए, सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, डियर फेलोज, होता क्या है, हमें इसके डेफिनेशन को जानना चाहिए. मैं हमेशा कहता हूं कि जब जब जो चीज़ जहां ज़रूरत पड़े, केवल छोटा सा पॉइंट उठा के भागने की आदत में नहीं रहिए. ये चीज़ बहुत हानिकारक होती है, बहुत हानिकारक. ठीक है. आप क्या कीजिए, चीज़ों पर काम कीजिए, चीज़ों को रिकॉल कीजिए, कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए. अब सपोज दैट जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपके पास है सरफेस एस. ठीक है. अब सरफेस एस क्या होगा? फाई ऑफ एक्स बाई जेड इक्वल्स टू सी टाइप ही तो होगा ना भाई. आपने ले लिया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर. सो फाई ऑफ एक्स बाई जेड क्या मिल गया यहाँ पर? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. मीन्स द सरफेस गिवन फॉर यू हियर, वेयर फ्रॉम विच यू आर इंटरेस्टेड, दैट इज बेसिकली सम स्केलर फंक्शन फॉर यू, राइट. सो ग्रेडियंट की जब बात करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट ग्रेड ऑफ सम स्केलर फंक्शन. ये कैसे दिया जाता है? जिस भी स्केलर फंक्शन का आपको ग्रेडियंट चाहिए, सो यू राइट दैट डी एफ ओवर डी एस टू एस कैप. ठीक है. अब ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, और जो एस कैप होगा वो नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा उसके. राइट और नॉट? बोलिए. ग्रेड एस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, वेयर एस कैप इज नॉर्मल, ऑब्वियसली यूनिट है, यूनिट नॉर्मल टू एस एट सम पॉइंट, जिस पर भी आप बात कर रहे हैं. So if you people don't have exact idea about these directional derivatives and all, I will suggest you don't miss that concept talk, directional derivative वाला. Grade वाला जो concept talk है, you will definitely enjoy that, I am pretty sure.
because I have like decoded beautifully. I am saying I have decoded very beautifully these things. Fair? So ग्रेड S जब आप बात करते हैं और आपको अगर यूनिट चाहिए, सो एन कैप जो होगा, आप ग्रेड S एट दैट पॉइंट अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस S. So for example, we had this surface for our given problem. Let's say this is the boundary C. This is surface I'm sorry S. So n cap will be what? n cap is the unit normal vector. जिस भी पॉइंट पर आप बात करें, आप यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ आपको करना है. So n cap is what? That is given by grade S upon modulus of grade S at that point. So while applying the Stokes theorem, why we always worry about the gradient? I hope that part is clear now. Right or not? अब यहाँ पर क्या हो सकता है? If I am concentrated on the problems only, if I am concentrated in the formula kind of study only, मैं आपको ये सब स्टोरी ना बता के सीधा ये बताता. डिफरेंस समझना कॉन्सेप्ट टॉक में और उसमें डिफरेंस क्या है, या आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हिले रहते हैं उनका रीज़न क्या है, मैं बताता हूँ. आपको किसी ने एन कैप समझाना था, डेफिनेशंस के थ्रू जाने के बजाय उसने क्या किया, 3 4 5 6 7 एग्जाम्पल लिए और आपको एन कैप निकाल कर दिखा दिया. आपको भी खूब तसल्ली हो गई. लेकिन जब आपसे अलग, मान लो ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन में जब आपसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हुई, जब आपसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात हुई दो सरफेसेस के, तो आपने फिर मतलब आपको दिक्कत होने लगी. या दो अलग अलग चीज़ों को दो अलग अलग पॉइंट्स मान के आपने लगातार उस पर अपनी एनर्जी और टाइम लगाते रहे. प्रोडक्टिविटी क्या होगी इसकी? ज़ीरो प्रोडक्टिविटी होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका. अब दूसरा तरीका समझिए. जब मैंने कॉन्सेप्ट डिकोड किया था ग्रेडियंट वाला, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बोला था. और व्हेनेवर आई कम फॉर टीचिंग, आई ऑलवेज से, प्यारे बच्चों, नेवर मिस द डेफिनेशन पार्ट, नेवर मिस द डेफिनेशन पार्ट. नहीं तो लाइफ में इतना तबाही मचेगी, हमेशा हर टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ लैग कर रहा है. और डेफिनेशन अगर आपको अंडर द राइट गाइड, अगर किसी ने एक बार, जैसे मान लो मैंने अभी स्टोक्स बताया, इसमें कितना टाइम लिया आपने? 15 मिनट, 20 मिनट. लेकिन इन 15-20 मिनट्स में कितने सारे टाइम आप अंडर ग्रेजुएशन से चीज़ों को रटते आ रहे थे, कितने बार आपने रटी थी, और उसके बाद भी ये काफ़ी संभावना थी कि क्वेश्चन गलत कर जाते आप. जहां स्टोक्स एप्लीकेबल नहीं था वहां स्टोक्स लगा जाते हैं. बोलिए, ऐसी संभावना थी कि नहीं थी? तो ये जो संभावनाएं हैं, ये जो नेगेटिव है, इनको किल करता है आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. While preparing for this UPSC एग्जाम, I will never suggest कि आपको इस लेवल का इंगेजमेंट अब खुद से सेल्फ स्टडी से कर देना चाहिए. बहुत सारा टाइम लगेगा आपको. हाँ, इफ़ यू हैव सम राइट गाइड, सम राइट पर्सन इन योर लाइफ हु कैन गाइड यू, हु कैन टीच यू. जैसे मान लो स्टोक्स है, मैंने आपके लिए कर दिया ना काम, लेकिन मैंने कितनी रातें, कितना टाइम उन चीज़ों पर दिया होगा, कितने बार गलतियाँ की होंगी. तो ये चीज़ होती है एग्जाम्पल्स के थ्रू. 10 एग्जाम्पल लगा के खुश हो जाना, मैं वो भी करता हूँ, लेकिन बहुत सिस्टमेटिकली करता हूँ. जैसे स्टोक्स डिकोड किया, स्टोक्स के एक एक पॉइंट को बताया कि एन कैप ऐसे कैलकुलेट क्यों होता है. अब इसके बाद बात आएगी सरफेस इंटीग्रल की. तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरफेस इंटीग्रल खुद में एक कॉन्सेप्ट टॉक चाहता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपने इतने सारे मतलब गलत पैरामीटर्स अपने दिमाग में सेट किए हुए हैं. प्रोजेक्शन क्या है, सिलेंडर का प्रोजेक्शन किस सरफेस पे कैसा दिखेगा,
सिलेंडर के लिए और प्लेन के लिए और स्फीयर के लिए तो आपने रट्टा लगा दिया, अब पैराबोलॉइड दे दिया तो फिर अब बस दिमाग दही हो जा रहा है कि यार अब क्या करें, अब तो फंस गए. सो थिंग इज आई एम नॉट ट्राइंग टू डू द थिंग्स मैसी, सो दैट इज वाई गेम ऑफ स्टोक्स जो था हमारा, हम गेम ऑफ स्टोक्स पर ही रहे. और आपको जब सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना आ गया, अब क्या है, आपने इस वैल्यू को निकाल दिया, इस वैल्यू को निकाल दिया. अब आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. मान लो आपसे ये पूछा गया कि इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल. यू फील कि यार यहाँ लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट करना थोड़ा टफ लग रहा है, अगर मैं स्टोक्स अप्लाई कर दूँ तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा. तो आप स्टोक्स एप्लीकेबल है या नहीं, इस पर बात कीजिए. मेरी बात समझ रहे हैं? तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप इनको अपनी कॉपी पर लिख लीजिए. दिस इज नॉट द फिलॉसफी माई डियर फेलोज. These are the things which are the results of rigorous efforts. तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स में क्या ज़रूरत महसूस होती है कि वेदर स्टोक्स एप्लीकेबल और नॉट. टाइप 2 प्रॉब्लम्स जहाँ वो बोलता है वेरीफाई करने को. तो जब वेरीफाई करना है तो वहाँ पर तो रिगरस प्रोसेस के थ्रू जाना ही होगा. आपको सरफेस इंटीग्रल अलग से कैलकुलेट करना है कर्ल एफ एंड डी एस का, और लाइन इंटीग्रल अलग से कैलकुलेट करना है. ठीक है डियर फेलोज. सो ये दो टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन आई वॉज मोर कंसर्न्ड ऑन द गेम ऑफ स्टोक्स थ्योरम. क्या कहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस. वी विल हैव अ कॉन्सेप्ट टॉक ओवर द सरफेस इंटीग्रल एक्सक्लूसिवली बिकॉज दैट इज गोना बी द मोर इंटरेस्टिंग थिंग. एंड गेम ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बाद में वी विल हैव सम conceptual problems as well. So don't forget to put your views and reviews over the things so that I can design the things in the best possible manner for you. Although आप जैसे कितने सारे बच्चों के फीडबैक्स हमारे पास होते हैं बिकॉज 10-12 साल पढ़ाने के बाद. सो आई वर्क ओवर द थिंग्स, आई ट्राई टू इंक्लूड everything there. So still don't put your personal suggestions as well. I will definitely consider those. It's enough from my side. So things को अगर हम समराइज करना चाहें तो हमने क्या किया है, we have decoded the stocks. पूरे इस कॉन्सेप्ट टॉक का समरी यही है. ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी नहीं उठाए, हमने केवल डिकोड किया है उसको ब्यूटिफुली. राइट, चलो, it's enough from my side. Don't forget to put your suggestions. Good luck, keep learning, keep smiling.